Okay, good morning, everyone. We will continue with this chapter AOD application of derivative. Already in the first lecture, we have studied about application of derivative as a slope of tangent and one as a rate measure. We also solved questions based on slope of tangent, right? I hope few questions I had given you homework. You would have managed those questions. Any doubt in those questions? Exercise 2.1, question number 1. First question, few questions for homework. Have you managed that or you have any doubt? Okay, done. No doubt. Fine. So now we'll continue with question number 2 onwards. ऐसे तो I had given you question number 2 का भी hint, right? 2 and 3. But I don't know how many of you have tried that. Okay. No problem. We will start with question number 2. As you can see here in this question, find the point on the curve where the tangent is perpendicular to this line. Okay. So exercise 2.1 we are continuing. This is question number 2. We are having equation of curve and the line on which the tangent is perpendicular. So the logic to find out the point of contact is to get the slope from the curve also and get the slope from the line also. Tangent लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अगर लाइन का स्लोप पता है तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? टैंजेंट हो जाएगा. फिर दोनों को कंपेयर करके हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो आई विल फर्स्ट कंसीडर द कर्व y equal to root of x minus 3, right? And I'll differentiate it as I used to do it, differentiating with respect to x, dy by dx, root something का derivative 1 upon 2 root something into x minus t का डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 1 माइनस 0. तो आपको जो dy बाई डी एक्स आया वो आया 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 3. हमको मालूम है ये तो इन जनरल स्लोप हो गया ना, इन जनरल स्लोप हो गया. तो अभी हम लोग को वो पॉइंट पे क्या स्लोप होगा, तो हमको तो पॉइंट मालूम ही नहीं, वो पॉइंट ही तो फाइंड करना है. तो आई मे एज्यूम लेट x1 comma y1 be the point of contact, right? Be the point of contact. So therefore, slope of tangent at x1 comma y1 is dy by dx at x1 comma y1, which is 1 upon 2 root x1 minus 3. Have you all understood the first step? जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का समझ में आ गया? Okay. Now I will consider the line. So now equation of given line is
6x plus 3y minus 5 equal to 0. Therefore its स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी, तो माइनस 6 डिवाइड बाई 3, तो -2 हो जाएगा, राइट. देन आई विल राइट कि सिंस tangent is perpendicular to given line, so therefore slope of tangent is negative reciprocal of this. नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो ये भी मिल गया मुझे नंबर 2. एंड नाउ फर्स्ट भी बोलता है स्लोप ऑफ टैंजेंट, ये भी बोलता है स्लोप ऑफ टैंजेंट, इसका मतलब दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं. सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 I can equate them. So 1 upon 2 root of x1 minus 3 is equal to 1/2. हाँ, अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है. एंड नाउ वी कैन जस्ट स्क्वायर बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग किया तो इधर 1 आएगा, इधर x1 माइनस 3 आएगा, -3 उधर जाएगा तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, ठीक है. एंड वंस यू गॉट x1 इक्वल टू 4, आप y निकाल सकते हो ना, क्योंकि y तो दिया हुआ है ना, y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3 है, तो x मतलब x1 हो गया ना, अगर y1 निकालना है. सो सिंस y इज रूट एक्स माइनस 3, मतलब y1 इज रूट x1 माइनस 3. सब्स्टिट्यूट कर दो, रूट ऑफ 4 minus 3, so root of 1 is 1, this is y1. so y1 मिल गया, इसका मतलब यही तो x1 y1 ढूंढना था हमको, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ढूंढना था, वो मिल गया आपने. hence the required points. हाँ, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये जो रूट है ना आंसर, तो इसमें प्लस और माइनस आएगा ना, क्योंकि पॉइंट है ना, इसमें नेगेटिव को हम इग्नोर नहीं कर सकते. सो हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, रूट ऑफ 4 minus 3 कैन गिव यू +1 और इट कैन गिव यू -1, राइट. सो वी मे गेट 2 पॉइंट्स, एक होगा 4,1 और एक होगा 4,-1. So hence the required points are 4,1 and 4,-1. Have you all understood this entire question? समझ में आया कैसे किया हम लोग ने सिस्टमैटिकली? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, एवरीथिंग विल बी सेम, बस ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा. इक्वेशन का लाइन, इक्वेशन लिखेंगे लाइन का, उसका स्लोप निकालेंगे, फिर लिखेंगे टैंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट वही हो जाएगा जो स्लोप ऑफ लाइन है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, बाकी तो सब सेम ही होगा. ऐसे ही करेंगे हम लोग, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज मैनेजेबल देन. ओके. Now let us go ahead with the next question. Question number 4. Please read the question from the textbook. Find the equation of tangent to the curve this. एक कर्व दिया हुआ है, x² plus y² minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0. Also it is given that कि जो tangent है वो पैरेलल है
एक्स एक्सिस के। तो मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ढूंढना है। तो क्या लगता है, पहले आप बोलो कैसे करेंगे। स्टूडेंट, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? स्लोप इक्वल होगा। अरे जीरो होगा ना भाई, क्या इक्वल बोल रहे हो? एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का स्लोप जीरो होगा। हाँ, ऐसा बोलो कि स्लो इक्वल होगा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस से, बट स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस भी तो जीरो होता है। तो यहाँ से टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, फिर यहाँ से भी मुझे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स के टर्म में तो आएगा ना इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हम्म। ओके, तो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। कैसे करेंगे इसको? I can first consider the curve and find out dy by dx. So differentiating with respect to x, we will get 2x plus 2y dy by dx minus 2 into 1 minus 4 into dy by dx plus 0 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 2 को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ तो 2y माइनस 4 आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 हो जाएगा। इसको भी पूरे नीचे लेके जाएंगे तो dy बाई डी एक्स होगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस एक्स प्लस 1, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा y माइनस 2, 2 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2। लेट इट बी इन एक्स एंड वाई, ज़रूरी नहीं कि x1 y1 करके आप निकालो, क्योंकि इक्वेशन ही ढूंढना है ना, डायरेक्ट आ जाएगा अपने को। ठीक है, इसको 1 नहीं बोलते, लिख देते देयरफॉर स्लोप ऑफ tangent is equal to minus x plus 1 upon y minus 2, in general slope of the tangent, right? Now I can say कि the tangent, since tangent is parallel to x-axis, so any tangent which is parallel to x-axis, okay, has slope 0. So slope of tangent in general parallel to x-axis is always 0. This is 2. And now from 1 and 2, from 1 and 2, if I compare them, it will be minus x plus 1 upon y minus 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये y माइनस 2 तो पूरा वहाँ पर गया, तो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आ जाएगा। आई एम जस्ट नॉट राइटिंग x1 y1, आप x1 y1 करोगे तो भी x1 मिलता है यहाँ पर, राइट? तो x मिल रहा है मतलब वो x कोऑर्डिनेट ही है ना, ऐसा समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, कभी कभी वो x1 y1 थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसलिए। अब x1 मिल गया तो अब y कैसे निकालेंगे? हाँ, तो
वो तो इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ना, टू गेट द वाई। या हेलो स्टूडेंट, सॉरी। हाँ, so I was here to हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे और इक्वेशन से हम y निकाल लेंगे, तो वो जो एक्स वाई आएगा वही हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर पुटिंग x इक्वल टू 1 इन equation of curve, what do we get? तो 1 square plus y square 2 into 1 minus 4y plus 1 is 0. So 1 plus y square minus 2 minus 4y plus 1 is 0. सॉल्व करो इसको और बताओ मुझे y का वैल्यू। y के दो वैल्यू मिलेंगे, आप डायरेक्टली y से डिवाइड नहीं कर सकते, y कॉमन y minus 4, so it is like product of two number is 0, so either y is 0 or y minus 4 is 0, that gives y equal to 4. so इसका मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स जो हमको क्या मिल जाएगा, तो एक मिल जाएगा 1,0 और एक मिल जाएगा 1,4. Therefore, the coordinates of point of contact are 1,0 and 1,4. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन में पूछा है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, राइट। तो दो पॉइंट मिल रहे हैं हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका मतलब देयर विल बी टू लाइंस, इजंट इट, देयर विल बी टू लाइंस, और वो जो टू लाइंस होंगे वो क्या होंगे, ये y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4 ही होगा ना इक्वेशन ऑफ लाइन, आप समझ रहे हो क्या।
क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। यस, अगर तुम सोचो कोई लाइन है 1,0 से पास हो रहा है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वही उसका इक्वेशन होगा ना। सो सिंस tangent is parallel to x-axis, its equation must be of type y equal to k, right? समझ रहे हो क्या मतलब y इक्वल टू का कोई नंबर। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ tangent, required equation of tangent is y equal to 0 and y equal to 4। समझ में आ गया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड कैसे किया हम लोगों ने ये? तो सिंपल था, हमने बस कर्व का डेरिवेटिव निकाला, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 दिया हुआ है, दोनों को कंपेयर करके एक्स वाई निकाला। अगर ये ऐसा नहीं होता एक्स एक्सिस से पैरेलल तो हम क्या करते, हमको स्लोप मालूम था और हमको ये पॉइंट मालूम था, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करके टेंजेंट निकालते। इधर भी स्लोप पॉइंट करोगे तो होगा वही, क्यों? क्योंकि m 0 है ना, स्लोप ही 0 है, तो जो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होगा। m 0 हो गया तो पूरा राइट वाला तो 0 हो जाएगा ना, तो y माइनस वाई वन 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू दिस। यस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू दिस। कैसे करेंगे? सिंपल है, इस कर्व का पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, वो हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, वो हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। बाद में नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, इसका मतलब इसका स्लोप इज आल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। दोनों को कंपेयर करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? एक्स वाई में ही करना तो डायरेक्टली जो एक्स वाई के अंदर रिलेशन मिलेगा ना आपको, वही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज मैनेजेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लाइन टचेज द कर्व, मतलब line touches the curve means what? This is tangent of this curve at this point, right? So we have to find a and b। तो क्या होगा, ये लाइन इसको टच कर रही है, तो अब दो तरीके से इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। एक तो इससे ही निकाल सकते हैं माइनस ए बाई बी फॉर्मूले से, इसको पहले फॉर्मेट में लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे इसका स्लोप आ जाएगा। और दूसरा इसका स्लोप कैसे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने पर, क्योंकि इस कर्व का ये टैंजेंट है, तो कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ टैंजेंट ही मिलता है ना। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, चलो करते हैं। 6 1 कंसीडर कर्व लेते हैं पहले। वाई स्क्वायर इज ए एक्स क्यूब प्लस बी, differentiating with respect to x, 2y dy by dx a into 3x स्क्वायर प्लस 0, तो dy by dx मिलेगा
3ax² डिवाइड बाई 2y। ठीक है, अभी क्वेश्चन में लिखा है कि एट पॉइंट 2,3, तो हम उस पॉइंट पे भी निकाल लेते हैं ना स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, क्या पॉइंट दिया है, 2,3 इज इक्वल टू 3a² 2 इंटू 3, 2² 4 3 ज़ा 12a अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 2a। समझ में आया सबको स्लोप ऑफ टेंजेंट यूजिंग द कर्व? ठीक है, नाउ कंसीडर द इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या दिया है, y इक्वल टू 4x-5। पहले इसको फॉर्मेट में लेकर आएंगे, दैट इज 4x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज कॉल्ड एज टेंजेंट, इस केस में क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वो टच करता है, वो होगा -a/b, तो -4/-1, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन इसको 1 एज्यूम किया, इसको 2 एज्यूम किया, एंड नाउ आई कैन जस्ट कंपेयर। सो कंपेयरिंग 1 and 2, वन एंड टू, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2a, 2a था 4a था, 2a इक्वल टू 4, हाँ 2a इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू आपको मिल गया 2। क्वेश्चन में ए बी फाइंड करना था ना, बी कैसे निकालेंगे अब, तो अब हमारा जो कर्व है उसमें पुट कर देंगे, तो हमारा कर्व है y² इज ax³ प्लस b, ए बी पुट करेंगे और एक्स वाई पॉइंट भी पुट करेंगे ना। हमारा एक्स वाई क्या है, एक्स वाई जो है वो हमारा पॉइंट है 2,3, और a2 है, पुट करो इसमें, तो 3² 2 इंटू 2³ प्लस b, 9 इक्वल टू 8 2 ज़ा 16 प्लस b, सो b का वैल्यू मिल जाएगा -7। So this is what we wanted to find out. So therefore a is 2 and b is -7 is your final answer. समझ में आया सबको? थोड़ा ये डिफरेंट था थोड़ा सा, इसको लिख लो जल्दी से, चलो। Let me know if you want me to scroll it down.
I hope it is done, students. Okay, so up to question number 6, it was based on derivative as a slope of tangent. Now, there are few questions which are based on rate measure. So let us see the 7th question here. The question says, a particle moves along the curve this. A particle moves along the curve. Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. Yes, y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, right? So y coordinate is changing with respect to what? Definitely it is with respect to time, isn't it? उस वो कर्व है, उस कर्व के ऊपर ऐसे कोई कर्व है, इस पे वो पार्टिकल है, हाँ, y चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है ना. तो ये जो लिखा है इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 8 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, देखो हम इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से. 7th वन, सो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन इंफॉर्मेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ y मतलब dy बाई डी टी इज 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x. सबको ये वाला लाइन समझ में आया? आई विल कॉल दिस एज 1. ओके, नाउ अब ये एक dy बाई डी एक्स मिल गया, दूसरा dy बाई डी एक्स मिल सकता है मुझे कर्व से, राइट? सो वी ऑल्सो हैव व्हाट इज अ कर्व, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, किससे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू? हाँ, एक्स से नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमको अब विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए ना, तो विद रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा. 6y is x square. Okay, I'll change it. हाँ, अभी क्या होगा देखो, 6y का डेरिवेटिव तो 6 कॉमन, y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बट अब x का भी डेरिवेटिव होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ ना मैं, और 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0. समझ में आया क्या सबको? ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, ये नंबर 2 कर दिया, ठीक है. अब मैं 1 का dy बाई डी टी यहाँ पर पुट कर सकता हूँ ना. यस, सो पुट 1 इनटू, तो 1 का dy बाई डी टी इधर पुट करूंगा तो क्या होगा, 6 टाइम्स 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2x dx by dt. I think it is clear everybody. आप देखोगे तो dx by dt भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा 6 8 जा 48 इक्वल टू 2x. समझ रहे हो क्या सब लोग? हाँ, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, x का वैल्यू मिल जाएगा 24.
अभी y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कर्व में पुट कर देंगे ना, कर्व में पुट करके y फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। सो what is the curve 6y equal to x square plus 2? So since 6y is x square plus 2, this will be 24 square plus 2, 576 plus 2, 578 is 6y, तो y मिल जाएगा, डिवाइड कर दो, 6 9 ज़ा 54, 38 बचेगा, 6 6 ज़ा 36, 20 बचेगा। हाँ, ऐसा कुछ डेसिमल में आ रहा है, या तो फिर आप डेसिमल में मत करो, फ्रैक्शन में ही रखो। 578 डिवाइड बाई 6 जितना कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। मैं अभी, मेरे पास एक मोबाइल में टेक्स्ट बुक है ना, उधर एक्चुअली क्यूब है, जरा पीछे आंसर चेक करो टेक्स्ट बुक के, एक्स क्यूब है। मुझे भी लग रहा है कि शायद ये सब मैंने सॉल्व किया है, एक्स क्यूब होना चाहिए, इसलिए ये जो वैल्यूज है थोड़े ऐसे डिफरेंट आ रहे हैं। देखो आंसर पीछे है क्या, 24 और ये ऐसा कुछ टेक्स्ट बुक के पीछे, क्योंकि मेरे पास ये जो ओल्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ना, तो उसमें तो एक्स क्यूब दिख रहा है मुझे। अगर वैसा हुआ तो फिर थोड़ा चेंजेस हो जाएगा क्वेश्चन में। हमको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ना, 411 दिया है, तो एब्सोल्युटली ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना बच्चों, ये जो एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स क्यूब है, ठीक है, दिस इज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। सो हियर देयर विल बी फ्यू चेंजेस, I'll do it, don't worry. हाँ, दिस इज ऑल्सो राइट लाइक न्यू सम, नो प्रॉब्लम, बट मैंने एक्चुअली वो टेक्स्ट बुक से देख के वाई एक्स क्यूब लिखा था, बाद में आपने एक्स स्क्वायर बोला तो फिर मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। राइट तो होगा ही ना, क्वेश्चन अगर रॉन्ग है, हम तो अपनी मेथड से कर रहे हैं ना, सो आपका कुछ मिस्टेक नहीं है उसके अंदर। सो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी कैंसिल होगा, तो 48 इक्वल टू 3x स्क्वायर आएगा, 3 डिवाइड करेगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, एक्स मिलेगा प्लस और -4, एक्स मिलेगा प्लस और -4, ठीक है। सो नाउ हमारा जो इक्वेशन है, कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक बार +4 करेंगे, एक बार -4, सो पुट x इक्वल टू +4, 6y इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2, 64 प्लस 2 66, y इज़ 11, और अगर हमने -4 पुट किया, 6y इक्वल टू -4 क्यूब प्लस 2, माइनस का क्यूब नेगेटिव होगा तो -64 प्लस 2 -62, so it is 2 3 ज़ा 1 ज़ा -31 by 3 is my y. So इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, therefore required points are what, 4 comma 11 and -4 comma -31 by 3. Yes, everyone understood this now? कैसे किया हम लोगों ने 7th one? Very good. Now let us see the next question, that is 8th one. 8th question, mark it very important. Let us see in the textbook first.
क्वेश्चन क्या दिया है, अ स्फेरिकल सोप बबल, हाँ
हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी हाँ या हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी कॉल भी आ गया था एक। हाँ, तो एक प्रॉब्लम कुछ सोचा आप लोगों ने इस बारे में? नहीं सोचा रहेगा। अ स्फेरिकल soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. Okay. At what rate the surface area is increasing when its radius is 5? एक स्फेरिकल सोप बबल है, वो एक्सपांड हो रहा है सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो ये जो रेट है ये किसका दिया हुआ है, पहले ये बताओ किसका रेट दिया हुआ है? रेडियस का दिया है, राइट? रेडियस का रेट दिया है, इसका मतलब ये दिया है डी आर बाई डी टी। अगर आर रेडियस है तो ये डी आर बाई डी टी है, ठीक है? ओके। अच्छा, स्फेरिकल बबल एक्सपांड हो रहा है मतलब एक्चुअली बबल का क्या पार्ट एक्सपांड हो रहा है, क्या बोलेंगे हम उसको? स्फेरिकल बबल इज एक्सपांडिंग मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपांडिंग? हमको पूछा है यहाँ पर रेट ऑफ सरफेस एरिया, सो डेफिनेटली अगर एक्सपांड हुआ तो वॉल्यूम भी एक्सपांड होगा। हाँ, सरकमफरेंस नहीं होता है स्फीयर के अंदर, वो सर्कल के अंदर होता है। स्फीयर बॉल, बॉल के अंदर सरकमफरेंस नहीं होता ना। ओके, तो वॉल्यूम भी एक्सपांड होगा, वॉल्यूम एक्सपांड होगा तो डेफिनेटली सरफेस एरिया भी एक्सपांड होगा। इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया पूछा तो वी आर मोर फोकस्ड ऑन दैट। ठीक है, चलो हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो हमारे कुछ टर्म्स है उसको एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे लेट आर जो है वो रेडियस है, ठीक है? एस जो है वो सरफेस एरिया है ऑफ द बबल, ठीक है? एट एनी टाइम टी। तो हम सबको मालूम है, हाँ, वी नो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 pi r square. This is surface area of sphere. We have done it in class 10 in the chapter mensuration. Now what I'll do, I'll differentiate this with respect to t. मुझे मिलेगा ds by dt, rate of change of surface area is equal to 4 pi constant r square का डेरिवेटिव 2r into dr by dt, राइट? तो ये हो जाएगा, हमको यही फाइंड करना था सरफेस एरिया का रेट, तो वही आ रहा है 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। अब हमको क्या करना है, हमको बोला है सरफेस एरिया का रेट फाइंड करना है, बट कहाँ पर? तो क्वेश्चन में दिया है आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बोला है, और हमको ये भी दिया था कि डी आर बाई डी टी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस इज 0.02। हेलो, यस और नो? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बस इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो, सो देयरफॉर डी एस बाई डी टी हो जाएगा 8 पाई इंटू आर इज 5 इंटू 0.02, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 8 फाइव ज़ा 40, 2 ज़ा 80, तो 0.8 आ जाएगा और पाई एज इट इज़ रहेगा, ठीक है? तो बस यही रेट है डी एस बाई डी टी का। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो सरफेस एरिया अपॉन टाइम है, तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Is that clear everyone? So therefore I can write surface area of the
soap bubble is increasing at the rate of 0.8 pi centimeter square per second. सबको समझ में आ गया ये प्रॉब्लम कैसे किया हम लोगों ने? प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, कम ऑन फास्ट. सो 8 प्रॉब्लम तक आज कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? ये कंप्लीट करके वी विल स्टॉप फॉर द डे हियर. ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आ गया है फॉर 3 मार्क्स. Okay, done. So we will continue this in the next class. Okay बच्चों, चलो, थैंक यू वेरी मच.